Welcome back students in a brand new class of computer fundamental. Here today we discuss the basic concept of computer memory and types of computer memory. A computer memory is one of the most important element in computer system. It stores data and instruction required during the processing of data and instruction. Computer memory refer to the device that are used to store data and program on temporary or permanent basis for use in compute. Memory is a holding area of data, instruction and information. Memory is contained on a chip connected to the सिस्टम बोर्ड. बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरह ह्यूमंस के लिए कोई भी चीज़ याद रखने के लिए किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं उसे स्टोर करवाना पड़ता है, तो सेम केस आता है कंप्यूटर में भी. किसी भी चीज़ को प्रोसेस करवाने के लिए या किसी भी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए उसे एक कंसेप्ट की ज़रूरत होती है. उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेमोरी. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी. इन जनरल द मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी and the second one is secondary memory. Here in this diagram we divide memory into two parts. First is primary memory and the second is secondary memory. We also divide primary memory into two parts. The first is read only memory and the second is random access memory. In same case we also divide secondary memory into two parts, magnetic memory and optical memory. We discuss these topics in later classes. We start with primary memory. The memory unit that communicate directly with the CPU is called main memory or primary memory. The primary memory allow the computer to store data for immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed. बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हमने सिस्टम को कोई भी कमांड देनी है, सिस्टम से हमने किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए बोलना है, तो वो चीज़ जो होती है वो चीज़ हमारी जो होती है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है. यानी जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी हमारी एग्जीक्यूशंस होती हैं, वो सारी की सारी जो मेरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है. प्राइमरी मेमोरी further divided into two categories. The first is random access memory. It is also known as read-write memory that allows CPU to read as well as write data and instructions into it. RAM is called temporary or volatile storage because everything is in most types of RAM is lost as soon as computer is turned off. It also lost if there is a power failure or other disturbance or other of electric current going to computer. बेसिकली क्या होता है, रैम जो मेरे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, उसमें डेटा तब तक ही रहता है जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है. जैसे मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है या उस कंप्यूटर को मैं बंद कर देता हूँ, उससे डेटा जो होता है लॉस्ट हो जाता है. या फिर पावर फेलियर की वजह से एकदम लाइट चली जाए, मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए, तब भी मेरा वो डेटा जो होता है लॉस्ट हो जाता है. वी आल्सो डिवाइड RAM into two categories. The first is dynamic RAM and the second is static RAM. Dynamic RAM, it requires constant refreshing of its content. It loses its content in very short period even through computer is working. It is made up of memory cell where each cell is composed of one capacitor and transistor. It is cheaper and slow than static RAM. And in static RAM, it does not require refreshing. It retains its content until computer is working. SRAM use multiple transistors of each capacitor. It is faster and expensive than dynamic RAM. बेसिकली रैम का वही काम है कि इसमें डेटा तब तक ही रहेगा जब तक मेरी पावर ऑन है. लेकिन बेसिकली जब रैम जो है फर्दर डिवाइड होती है तो डायनेमिक रैम बोलती है, वो कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है, रिफ़्रेश करता रहता है डेटा को, और डेटा जो होता है इरेज करता रहता है. चाहे मेरा कंप्यूटर ऑन ही है, लेकिन इससे क्या करता है, वो रैम के डेटा को क्या करता रहता है, क्लियर करता रहता है. बट इन केस ऑफ स्टैटिक रैम ऐसा नहीं होता है, उसे रिफ़्रेशिंग की ज़रूरत नहीं है. जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन रहता है उसमें डेटा तब तक रहता है, बीच में डेटा जो होता रिफ़्रेश नहीं करता है. स्टैटिक रैम जो होती है हमारी थोड़ी कॉस्टली होती है हमारी डायनेमिक रैम से. नाउ द सेकेंड वन इज रीड ओनली मेमोरी. वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरी मेमोरी टू टाइप. फर्स्ट इज रैम
that we have discussed, and the second is read only memory, that is ROM. ROM is a chip information stored in them by the manufacturer. Unlike RAM chip, ROM chip are not volatile and cannot be changed by user. Read only mean the CPU can read or retrieve the data and program written on the ROM chip. However, the computer cannot write, encode or change the information or instruction in ROM. Basically, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ROM, read only memory. In this memory, we can only read the content. We cannot write the content or changes the content of ROM. It is basically all the contents in the ROM is stored by the manufacturer. तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट है मैन्युफैक्चरर ने जो होता है स्टोर करके रखा होता है, इससे हम चेंजेस नहीं करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ रोम. द फर्स्ट वन इज मास्क रोम. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रोम. इन दिस टाइप ऑफ रोम द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, सो इट कैन नॉट बी ऑल्टर और इरेज्ड लेटर ऑन. बेसिकली जिस रोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस रोम को हम प्लेन लैंग्वेज में मास्क रोम बोलते हैं, जो कि जब बनाई जाती है उसके अंदर उसी टाइम जो है कंटेंट लिख दिया जाता है, उसके बाद उसके कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज पी रोम, प्रोनाउंस एज प्रोम. इट इज़ अ फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ए पी रोम इज ए मेमोरी चिप ऑन विच डेटा कैन बी रिटन only once a program has been written onto ROM. It remains there forever. Unlike RAM, ROM retain their content when the computer is turned off. The difference between PROM and ROM is that the PROM is manufactured as a blank memory, whereas ROM is programmed during the manufacturing process. Basically होता क्या है, PROM और ROM जो हैं दोनों सेम है. बेसिकली जो थियरी है, जो कंसेप्ट है, वो दोनों का सेम है कि इसको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं. लेकिन पी रोम क्या बोलता है कि पी रोम जो स्टार्टिंग में जब मैन्युफैक्चर बनाता है तो उसे ब्लैंक बनाया जाता है, खाली रखा जाता है, बाद में उसमें जो होता है डेटा जो है रखा जाता है. लेकिन इन केस ऑफ रोम में ऐसा नहीं है. रोम को जब बनाया ही जाता है, जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी टाइम जो उसके अंदर जो है डेटा जो है रख दिया जाता है. अब जैसे मास्क रोम के अंदर तो हम चेंजेस कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा पी रोम के अंदर प्रोग्रामिंग के साथ जो है हम चेंजेस कर सकते हैं. तो अगर मुझे पी रोम के अंदर चेंजेस करने हैं तो मुझे एक डिवाइस चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं पी रोम बर्नर या पी रोम प्रोग्रामर, जो क्या करता है उसमें जो है प्रोग्रामिंग के साथ जो है डेटा जो है रख सकता है. लेकिन एक बार जैसे उसने एक बार डेटा उसके अंदर रख दिया, फिर उसमें वो चेंजेस जो है नहीं कर सकता है. द नेक्स्ट वन इज ई पी रोम. EPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. It is a special type of memory that retains its content until it is exposed to ultraviolet ray. The ultraviolet light clear its content, make it possible to reprogram the memory. To write and to erase the EROM, you need a special device called P-Programmer, पी रोम प्रोग्रामर और पी रोम बर्नर. सेम केस है. अगर इसमें किसी ने डेटा लिखना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, पी रोम बर्नर या पी रोम प्रोग्रामर ही चाहिए होता है. हाँ, लेकिन जैसे मैंने पी रोम के अंदर डेटा लिखा है, उस डेटा को अगर मुझे चेंज करना है तो मेमोरी का जो या रोम का वो कंसेप्ट जो हमारे पास ई पी रोम कहा जाता है. ई पी रोम में क्या करते हैं हम, अल्ट्रावायलेट लाइट्स के साथ हम उसके कंटेंट को क्या करते हैं, इरेज करते हैं और रीप्रोग्राम करने के लिए हम उसे तैयार कर लेते हैं. और रीप्रोग्राम करने के लिए मुझे उसे पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम वर्नर की ही ज़रूरत जो है पड़ती है. द नेक्स्ट वन इज ई पी रोम. ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन इरेज बाय एक्सपोजिंग टू इनटू एन electrical charges like other PROM. EEPROM retain its content even when the turn off. As like other types of ROM, EEPROM is not fast as RAM. EEPROM is similar to the flash memory. Like flash memory mean like pen drive. The principal difference is that EEPROM require data to be written and erased one byte at a time, whereas flash memory allow data to be written or erased block by flash memory faster. In
बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फ्लैश मेमोरी एंड EEPROM इज सिंपल कि जो हमारी EEPROM होती है उसमें जो हम डेटा लिखते हैं वाइट वाइज वाइट लिखते हैं, एक एक वाइट करके हम डेटा जो उसके अंदर लिख सकते हैं और इरेज भी हम उसमें डेटा वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है उसमें तो मैं इकट्ठा डेटा जो है इरेज कर सकता हूँ और इकट्ठा डाटा उसके अंदर जो लिख सकता हूँ। बाकी रोम्स पे डिफर इसलिए करती है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बार हम डेटा जो लिख सकते हैं, काफ़ी बार डेटा इरेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जो थी प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम। Now we have a question, what is difference between RAM and ROM? In case of RAM, it is read-write memory. It is volatile memory. Data in RAM can be modified. RAM is costlier memory used to store data that has been currently processed by CPU temporarily. And type of RAM are static and dynamic RAM. In case of ROM, it is read-only memory. It is non-volatile memory. Data in ROM cannot be modified. ROM is comparatively cheaper than RAM. It stored an instruction during the bootstrap of computer. Type of ROM are PROM, EPROM, EEPROM. बेसिकली यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप मीन कि जैसे ही मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूँ मेरा बूटिंग का काम होता है सारा। मेरा सिस्टम जो है पावर ऑन होने से लेके मेन स्क्रीन आने तक के बीच में जो काम होता है सारा के सारा वो काम होता है मेरे पास बूटिंग पे। तो रोम के अंदर जो हो गया जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें जो डेटा लिखा जाता है वो मैन्युफैक्चरर लिखता है जिसने उसे बनाया होता है। तो जो बूटिंग टाइम पे डेटा होता है उसी डेटा की ज़रूरत जो मुझे रोम के अंदर पड़ती है, बाकी मुझे कोई तरह का डेटा जो है इसके अंदर नहीं रखना होता है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इन टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी हमने जितनी भी चीज़ पढ़ी वो उसमें हम डेटा जो था टेम्परेरी रखते थे। थोड़े टाइम के बाद डेटा जो था इरेज हो जाता था या हम उसके अंदर ऐसा डेटा रखते थे जिसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। नाउ इन सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी इज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉट डायरेक्टली accessed by CPU or computer. It must first copy into primary storage, that is RAM, and usually available as a non-volatile nature. Due to this, the data remain in secondary memory as long as it is not overwritten or deleted by the user. One of the common form of this memory is hard disk of computer, which is store the operating system and other program. Secondary memory devices include hard disk, floppy disk, memory stick, CD, DVD, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव। बेसिकली क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं। लाइक मैं सिंपल कोई काम कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, मैं उसमें टाइपिंग करते जा रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को अगर मैं सेव नहीं करता हूँ तो जैसे मेरी पावर ऑफ होगी मेरा डॉक्यूमेंट क्या करेगा, इरेज हो जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेव करना है तो मैं रैम के ऊपर तो कर नहीं सकता, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसलिए मुझे ही सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत जो है पड़ती है। और बेसिकली डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में कभी भी काम नहीं होता है, काम हमेशा किस पे होगा, मेरा प्राइमरी मेमोरी पे ही होगा। सारे की सारी एग्जीक्यूशन जो है मेरे पास प्राइमरी मेमोरी पे ही होती है। नाउ टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी। द फर्स्ट इज फ्लॉपी। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज मीडिया यूज्ड ऑन स्मॉल टुडे इज फ्लॉपी डिस्क. It is flexible plastic disc coated with the magnetic and look like a phonograph record. Information can be recorded or read while insert it into disk drive connected to computer. Floppy disks are available in two size. One is 8-inch size and other is 5 1/4 size, which is frequently referred as a mini floppy. बेसिकली फ्लॉपी जो आज के टाइम पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फ्लॉपी बेसिकली हमारे पास जो फोनोग्राफ होता है, रिकॉर्ड होते हैं, उसकी कैसेट्स की तरह होती थी। पर बेसिकली आजकल हम इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी। द सेकेंड इज हार्ड डिस्क ड्राइव. इट इज़ नॉन वोलाटाइल डिवाइस, रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ अ स्टोरेज यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग rotating disk coated with magnetic material. All the programs of the computer are installed in hard disk and the hard disk store the data in track and sector. Basically हार्ड डिस्क के बारे में सभी को ये आइडिया है कि होती क्या है। इसके अंदर जो बेसिकली सारा का सारा डेटा जो स्टोर होता है, ट्रैक एंड सेक्टर्स क्या होता है, इसके अंदर छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जिसको रोटेट करती रहती हैं, जिसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा जो होता है स्टोर करता है। आज हमारे डिफरेंट साइज आते हैं, जैसे
500 GB, 1 TB, 2 TB, पेटाबाइट्स तक की हमारे पास हार्ड डिस्क जो हैं आ चुकी हैं। नाउ वी हैव ए ऑप्टिकल डिस्क्स। द फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क CD के द मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। CD is capable being used as a data storage device among store audios and videos. CD is categorized into three forms. The first one is CD-ROM. It is used just for the contents in the ROM cannot be changed or erased by the user. It is designed to store computer data in form of text, graphics as well as hi-fi stereo sound. It is capable to store large amount of data that is 500 MB. बेसिकली सीडी में क्या है ना, हम हर तरह का डेटा जो है रख सकते हैं। तो सीडी में सबसे पहली फॉर्म आती है सीडी रोम, जिसके अंदर हम जो है 700 MB तक का डेटा रख सकते हैं। लेकिन सीडी रोम में प्रॉब्लम ये है, ये काम करती है WORM पे, राइट वंस रीड मैनी। इसके अंदर हम एक बार ही डेटा रख सकते हैं। एक बार हमने 700 MB डेटा रख दिया उसके अंदर हम दोबारा डेटा राइट नहीं कर सकते। अगर मैंने उसके अंदर 100 MB डेटा भी राइट किया हुआ है तो वी कैन नॉट चेंज द डेटा ऑफ CD-ROM. Now second one is compact disk, recordable, or data can return on these disks only once. The data once stored in these disks cannot be erased. CD-RW, compact disk read writable. It is a erasable disk. CD-RW is used to write data multiple time on the disk by the use of format feature. बेसिकली RW लिखा हुआ है रीड राइटेबल। इसके अंदर हम जितनी बार डेटा लिख सकते हैं, जितनी बार डेटा हम इरेज कर सकते हैं। बेसिकली CD के कंसेप्ट में साइज हमारे पास उतना ही रहेगा 700 MB तक। नाउ सेकंड वन इज DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें बेसिकली इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय फिलिप्स, सोनी, तोशिबा एंड पैनासोनिक इन 1995. Basically it is collaborated with these four companies, collaboration of these four companies like their companies Sony, Philips, Toshiba and Panasonic. DVD is offer higher storage capacity than CD. It store several gigabytes of data. DVD are primarily used to store music, movies and can be playback on your TV or a computer. बेसिकली DVD में और CD में फ़र्क इतना ही है कि DVD का साइज़ जो होता है CD से काफ़ी ज़्यादा होता है, और कोई बेसिक थ्योरी में कोई नहीं है, सभी को हम ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। तो DVD भी मेरे पास 3 टाइप्स की है, DVD रोम, DVD R एंड DVD RW। सेम केस है, रोम रीड ओनली, रीड कर सकते हैं, R रीडेबल एंड द लास्ट वन इज़ RW मीन रीड राइटेबल। द नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। A pen drive is also known as flash drive. A flash drive is a storage device that consists of flash memory with portable USB. USB flash drive read writable and much smaller than floppy disk. A USB flash drive as same as size of thumb that plug into the computer port. बेसिकली इसमें कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम USB मीन यूनिवर्सल सीरियल बस। तो पेन ड्राइव बहुत ही एक छोटी सी मेरे पास एक फ्लैश मेमोरी होती है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर मैं बहुत सारा डेटा जो है स्टोर करके रख सकता हूँ। नाउ द लास्ट वन इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आर मेड ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टोर डेटा परमानेंटली. Data can be read as well as recorded. It is usually 12 mm to 25 mm wide and 500 to 1200 m long. They can store data in sequence manner. Magnetic tape are durable, can write, written, erase and read. Magnetic tape hold the maximum data which can be accessed sequentially. Basically जो है ना, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक में मेन डिफरेंस जो आता है, हार्ड डिस्क में हम जो भी डेटा असेस करते हैं वो होता है रैंडम फॉर्म में, लेकिन मैग्नेटिक टेप से हम जो भी डेटा असेस करते हैं वो होता है एक तरह से सीक्वेंस फॉर्म में. नाउ वी हैव ए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. As we know that primary memory is directly accessible by the processor, whereas secondary memory is not directly accessible by the CPU. क्योंकि बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी का जो भी डेटा असेस करना है वो मुझे प्राइमरी मेमोरी में रखना ही पड़ता है. प्राइमरी मेमोरी आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स, वेयर एज सेकेंडरी मेमोरीज आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटीरियल. द कंप्यूटर हैज ए स्मॉल प्राइमरी मेमोरी, whereas computer has a large secondary memory. Secondary memory is also known as external memory and the primary memory is also known as internal memory.
Here in this picture we have some basic terms of the computer memory management like bit, byte, nibble, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, and zettabyte. The bit is the smallest memory measurement unit. As per these notes, geobyte is the largest or highest memory management unit or a memory measurement unit. So, thanks for today. See you in the next class. Thank you and have a nice day.